انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ قوم سے سچے دل سے معافی مانگیں اور نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کریں۔ بات چیت سیاسی جماعتوں کو آپس میں زیب دیتی ہے، اداروں کو نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا، تمام سیاسی جماعتیں، عوام کے نمائندے اور لیڈر قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی لیڈر یا ٹولہ فوج پر حملہ کرے، دھمکیاں دے، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، قوم کے شہداء کی تضحیک کرے، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ انتشاری ٹولہ نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے۔ مزید کہا، پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، اگر خطرہ ہے تو صرف غیر جمہوری رویوں سے ہے۔ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو سزا دینا پڑے گی، سزا نہ دی گئی تو ملک کا نقصان ہوگا، نظام انصاف پر سوال اٹھے گا۔ 9 مئی صرف افواج نہیں، پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا، پاک فوج نے اپنا احتساب کا عمل تیزی سے مکمل کر لیا۔ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اس کے ناقابل تردید شواہد عوام کے پاس بھی ہیں۔ فوج اور ایجنسیوں کے خلاف ذہن سازی کی گئی، کچھ سیاسی لیڈرز نے چن کر اہداف دیے، مذموم مقاصد کے لیے معصوم بچوں کو ورگلایا گیا۔ جب سب کھل کر سامنے آ گیا تو جھوٹ اور فریب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر بنانا ہے تو پھر معاملے کی تہہ تک جائیں، پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملے کی بھی تحقیقات کریں۔ کیا ہم خدا نخواستہ کسی اور 9 مئی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے دوران 9 مئی واقعات کی ویڈیوز اور شواہد کی ویڈیوز بھی چلائی گئیں۔ 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47%، اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ، جو کہ کل کا بنتا ہے 31%، تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا۔ اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں، پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی۔ کیا وہ ووٹ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے حق میں تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ مخصوص پارٹی کو ووٹ ملنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ووٹ 9 مئی کے حق میں تھا۔ الیکشن میں فوج کی سیاسی مداخلت کے جھوٹے بیانیے کو بڑھایا گیا۔ الیکشن میں فوج کی مداخلت کا کوئی ثبوت ہے تو آئینی فورمز پر رکھیں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم کسی خاص سیاسی سوچ کو آگے لے کر نہیں بڑھتے۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے، یہ بات غلط ہے، اس جماعت کو ملنے والے سارے ووٹ فوج کے خلاف تھے۔ الیکشن میں فوج کا کردار صرف محفوظ ماحول فراہم کرنا تھا۔ حقائق دیکھے جائیں تو عام انتخابات میں 47% ٹرن آؤٹ تھا، 6.5 کروڑ ووٹ کاسٹ ہوئے، 31% ووٹ ایک مخصوص جماعت کو پڑا جو مجموعی آبادی کا بھی صرف 8% بنتا ہے۔ 93% آبادی ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ آئین افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا پر تواتر سے زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ افواج پاکستان کو سیاست میں الجھانا کسی کے حق میں نہیں۔ فوج میں کسی قسم کی سیاسی سوچ نہیں ہوتی۔ سیاست میں جھوٹ کی بنیاد پر بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں قوم کی اخلاقیات امن و امان تباہ کریں۔ فوج کا حکومت کے ساتھ غیر سیاسی، آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، کیا اس سیاسی سوچ نے پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے لابنگ نہیں کی؟ یہ چاہتے ہیں ملک معاشی طور پر تنزلی کا شکار ہو جائے۔ جھوٹ پر جھوٹ، فریب پر فریب کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مزید کہا، 6 ججز کے خط کا معاملہ عدالت میں ہے، بغیر ثبوت کے الزامات لگانا مناسب نہیں۔ عدلیہ اور آئین کا وقار داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہاول نگر واقعے کے فوری بعد سیکیورٹی اور پولیس افسران نے معاملے کو حل کر لیا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ، برادرانہ، محبت اور احترام والا رشتہ ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ کیا انہوں نے آپ سب کے سامنے آئی ایم ایف کو لکھا نہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے، وہ نہ دی جائے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟
पाक फौज ने सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्जाम लगाना अफसोसनाक करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे और बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब उस बुरे वक्त में हमारे सरमायाकारी कर रहा है। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इजहार राय के पीछे छुपकर दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। ये मज़मूम सियासी सोच है कि हम नहीं तो कुछ भी नहीं। वो यही सोच जो चाहती है मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की ना करे। क्या मखसूस जमातें IMF को इमदाद मशरूत करने के लिए ख़त नहीं लिखे? क्या उन्होंने IMF बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए? क्या अमरीका में लॉबिंग फर्म रख कर अमरीका की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की? तर्जमान पाक फौज ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने किसी को ना अड्डे दिए हैं ना दिए जाएंगे। कहा जाता है फौज टेक ओवर या कंट्रोल करना चाहती है। फौज का ऐसा कोई रोल नहीं कि वो किसी महकमे की जगह ले। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बशाम वाक़े का मकसद पाक चीन दोस्ती को सबरताश करना था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दासू डैम हमले की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान से की गई। पशीन से गिरफ्तार दहशतगर्द भी अफगान शहरी हैं। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बेअमनी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे मगर अफगान अबूरी हुकूमत ने वादों पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को वापस भेजने का फैसला वसी तर मुल्की मुफाद में किया गया। पाक फौज दहशतगर्दों की राह में आहनी दीवार है। आर्मी चीफ ने कई बार कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तर्जमान पाक फौज का फलस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। भारत हमेशा की तरह अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए जो मनसूबाबंदी कर रहा है, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत उससे बाखूबी आगाह है। मुतअद्दिद मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गईं। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलवस हैं। भारत बाकी ममालिक में मावरा रियासत टारगेट किलिंग में मुलवस है। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे मजमूम मंसूबे बनाता है। हम अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय जारहियत का हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जानिब से मशरक़ी सरहद पर लगातार खतरात हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। ताकत के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बहादुर कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाब होगी। पाक फौज का मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत से ताउन के अज़्म का आयादा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाक फौज मुआशी मामलात में भी किरदार अदा कर रही है। एक सवाल के जवाब में बोले, SIFC और दीगर शोबों में फौज का किरदार सहूलतकारी का है। हमारा काम अथॉरिटीज़ की मदद करना है, उनकी जगह लेना नहीं। दुनिया भर में कई हुकूमतों ने मुआशी मंसूबों में फौज को इस्तेमाल किया। मजीद कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत को कभी भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान तिजारत की इजाज़त देता है लेकिन स्मगलिंग की नहीं। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मुलवस अफराद की ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। उन्हें कटहरे में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है, लापता अफराद कमीशन में 80% केसेस निपटा दिए गए। लापता अफराद का मसला पेचीदा है। दुनिया भर में हत्ता के तरक्की याफ्ता ममालिक में मिसिंग पर्सनस की तादाद लाखों में है। मिसिंग पर्सनस का मामला कानून नाफिज करने वालों के खाते में डाल दिया जाता है। हुकूमत इसे बहुत संजीदगी से लेती है। हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। जो जज मुदाखलत देकर कुछ ना करे उसे घर चले जाना चाहिए। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के 6 जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
कहा तौहीन अदालत और मुदाखलत से ज्यादा बुरा अमल कत्ल है जो मना है, क्या वो रुक गया? मुआशरे में ये चीजें चलती रहती हैं, असल बात यह है कि हम इससे कैसे निपटते हैं। मजीद कहा एक कमिश्नर ने झूठ बोला जिसे सारे मीडिया ने चलाया, किसी ने झूठ से मुतल्लिक नहीं पूछा। सजा जजा छोड़ें, सब बोलना शुरू करें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हावी हैं। एक जज को तनकीद से बेपरवाह होकर काम करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कल तक का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस खत अज खुद नोटिस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते? हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कहा यह 6 जजेस का खत नहीं, एक अमल की निशानदही है जो ना धरना फैसले से खत्म हुआ, ना सुप्रीम कोर्ट के किसी और इक़दाम से। हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया है। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है मुतमईन करें, मुदाखलत नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सब मुत्तफिक हैं कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है, हुकूमत इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। मामला अब 6 जजेस के खत से आगे बढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि इस मुदाखलत को खत्म कैसे किया जाए। वकील एहसन भून ने कहा कि इंतहाई खतरनाक बात है कि जज के बेडरूम से कैमरा निकले, किसी की निजी जिंदगी में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए मामला सुप्रीम जुडिशल को भेजने की तजवीज़। अदलिया के अमूर में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। तौहीन अदालत का कानून आला अदलिया को ऐसे मामलात में कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार देता है। जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट बार की तजावीज़। मजीद कहा कि 6 जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की। जजेस का खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहुँचने से पहले लीक होने की इंक्वायरी की जाए। आला अदलिया के जजेस को किसी कमर्शियल सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। किसी जज को अदलिया के अंदर से दबाव का सामना हो तो जज पहले मुतल्लिका चीफ जस्टिस को आगाह करे। पीटीआई ने 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई का मकसद ऐसा नहीं था कि अमेरिका से ताल्लुक खराब किए जाएं। मजीद कहा शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मिलने अंदर नहीं जाने दिया गया। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तसल्ली है, यकीन है कि किसी भी पार्टी को जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी और हमें इंसाफ मिलेगा। 9 मई हमेशा याद दिलाएगा। एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। पाक फौज की तनसीबात और शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। उसका तसव्वुर किसी भी मुल्क और किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। उन किरदारों की सजा का फैसला आइन और कानून करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वफ़द के दौरा कामयाब बनाने पर वज़रा और मुतालिका हुकाम को मुबारकबाद। काबीना इजलास में बोले सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का खुले दिल से एतराफ़ किया और कहा वो खुशी के साथ वापस जा रहे हैं। जाकर बताएंगे पाकिस्तान में एक नया दौर देखा है। काबीना ने सियाल एयरलाइन के इंटरनेशनल रूट समेत मुतादिद एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना में गंदम स्कैंडल से मुतालिक रिपोर्ट्स पेश न हो सकी। मामला भी ज़ेर बहस नहीं आया। मकबूजा कश्मीर का मामला गजा से मुख्तलिफ नहीं। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं भारत मकबूजा कश्मीर से अपनी अफवाज निकाले और गैर कानूनी कब्जा खत्म करे। भारत के साथ दोस्ती करवाने का टास्क किसी शख्सियत को नहीं दिया गया। ऐसा अगर होगा तो काबीना इसका फैसला करेगी। मजीद कहा उम्मीद है रवां माह सऊदी वली अहद पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत ने पेंशन बोझ कम करने के लिए इस्लाहात लाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क सिर्फ टैक्स देने से ही चल सकते हैं। तनख्वाहदार तबके पर 50,000 से ज़ायद पर टैक्स लागू हो जाता है और जो 10,000 का बिल देते हैं वो टैक्स फाइल क्यों नहीं करते। IMF का वफ्द 7 या 10 दिन में पाकिस्तान का दौरा करेगा। आज़म नज़ीर तारड़ बोले हम अभी नहीं तो कभी नहीं ये नहज पर पहुँच चुके हैं। अखराजात का बोझ कम करने के लिए पेंशन रिफॉर्म्स कर रहे हैं। सर्विस का दौरानिया बढ़ाने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर है।
पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम ना खरीदने की पॉलिसी पर गामजन। किसानों के मसाइल कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगे। वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है सूबे में 23 लाख मेट्रिक टन गंदम का स्टॉक मौजूद है, जो अगले पूरे साल के लिए काफ़ी है। वफाकी हुकूमत को गैर ज़रूरी गंदम दरामद करने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मजीद कहा 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये सस्ता होकर 1800 रुपये तक आ चुका है। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में नानबाई एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। रोटी 16 और नान 20 रुपये पर रखने के लिए सब्सिडाइज आटा देने का मुतालबा कर दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने गंदम दरामद करने के फैसले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गंदम स्कैंडल की जिम्मेदारी सूबों पर नहीं डाली, उनसे मंसूब बनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। गंदम के मामले पर सेहतमंद बहस होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कुछ लोगों की ख्वाहिश है उनके और अनवर हक काकड़ के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो। गंदम स्कैंडल में जो भी मुलव्विस पाया गया उसे सजा मिलेगी। गंदम का मसला पिछले साल क्यों नहीं हुआ? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा दिसंबर 2023 के बाद से हालात ज्यादा खराब होना शुरू हुए। ओहदा संभालने के बाद पहली मीटिंग ही अमनो अमान पर की थी। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की बानी पीटिया से अडियाला जेल में मुलाकात। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी तरफ बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल महफूज फैसला सुनाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गुज़श्ता हफ्ते फरीक़ैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से वकील फारूक एचनाइक अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं उनके खिलाफ केस आगे नहीं चल सकता। उधर तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर 23 मई को दलाइल तलब कर लिए। मुल्क भर में खुश्क और गर्म मौसम का राज। सूरज की तपिश मैदानी इलाकों के रिहायशियों का इम्तिहान लेने लगी। दादू और मिट्टी में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। जैकबाबाद, मंजोदाड़ो, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर में दर्जा हरारत 46 तक रिकॉर्ड। बहावलपुर, डेरा गाजी खान में पारा 44 सेंटीग्रेड तक गया। लाहौर में भी शदीद गर्मी की लहर पारा 41 को छू गया। उधर गर्मी से बेहाल लोगों को मौसम का हाल बताने वालों ने अच्छी खबर सुना दी। 10 से 12 मई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी।